Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, I am going to discuss with you UPSC's mains paper topics. So guys, as you know, UPSC conducted its mains 2023 examination in September month. So guys, in that, in essay paper, which was quite difficult, okay, topics were literally very difficult, especially section A was a bit tough. So today I'm going to discuss one topic from the section 1, and I will discuss with you the entire structure of the topic in detail. So if the topic comes, what data you suppose you should have written and in what format you should have written that data. So that we will discuss. So you can take help of this lecture and try to write your own essay using the same content and the same format. So guys, today I am going to discuss this CSE Mains 2023 paper essay structure, and in that guys, the topic that I am going to discuss now is the topic number 2, that is visionary decision making happens at the intersection of intuition and logic. Okay, so this topic I am going to discuss with you in detail, that visionary decision making happens at the cross section of intuition and logic. Okay, and guys, in my lectures at Khan Study Group where I teach essay and ethics part, so in that essay part guys, I have discussed in detail one segment related to science and religion. And in that science and religion debate, the science what points out to and what art points out to is nothing but exactly the same topic that UPSC asked question on. So visionary decision making happens at the intersection of intuition and logic. So intuition generally points to your subjective decision making, artistic decision making or artistic aspects, emotional aspect of your life, while logic points to extremely scientific method, systematic method of inquiry. And if you do or follow both the science as well as intuition, or logic as well as intuition, you arrive at a awesome decision, visionary decision. This is what basically essay is talking about. So visionary decision making happens at the cross section of intuition and logic. This topic we will discuss in detail. So guys, first in this essay I will begin with the intro. Now I always tell you that in intro you try to establish the essay topic, that you justify the essay topic, that this essay topic is correct, okay, UPSC has asked, and how it is relevant, or you try to justify with some example that yes, visionary decision making happens at the cross section of intuition and logic. Now generally guys, if you want to write some intro, some example, many people will quote some scientists like Einstein, Steve Jobs, Watson and Crick. Many examples I will give later on. But generally, I will prefer to discuss an example from an Indian perspective. Okay, so if I have to discuss some example to establish this essay, some historical example, then I will start with the example of Mahatma Gandhi. Okay, in Mahatma Gandhi, when he created this Indian national movement, how he used logic as well as intuition in an awesome manner to create a mass movement. So every symbol that he used, like charkha, okay, with logic he linked it with the economic exploitation, economic policies of the British imperialism, and at the same time through charkha he got connected with the masses. Okay, he linked that charkha not only with economic exploitation of masses, but also as a symbol to unite the Indian people irrespective of caste, class, sex, religion. So it doesn't matter you are Hindu, Muslim, Sikh, Christian, all Indians were using charkha before arrival of British and doing this mass production of clothes. So this is classic example of intuition and logic. Same in CDM, Gandhi created a huge mass movement, and this mass movement in CDM is a perfect combination of logic and intuition. Okay, here he used logic of salt, the most taxing. Okay, so by salt he was logically linking British imperialism with the last downtrodden, the people who are at the end or most poorest. And also by using salt, he was creating or uniting the nation, uniting the masses, irrespective of class, sex, religion, etc. So again, decision to select salt, decision to select charkha as a symbols was extremely visionary decision, which lied at the cross section of intuition and logic. So I will use this example, but there are many other examples. So I will, with such example, will establish the essay. तो आपका intro इतना powerful करो that and to the point, that communicate to the examiner कि ये जो argument और topic दिया है, I have understood that topic very well. ये रहा example. Okay, I have complete grasp of the topic.
और आगे जो भी पढ़ने वाले हो गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टू द पॉइंट, एक्सट्रीमली वेरी मच फोकस्ड. Okay, so Mahatma Gandhi's fight against Britishers in India was a visionary decision. I will start with this story. Grounded in both logical strategy and intuitive empathy of Satyagraha, his leadership combined the wisdom of negotiation with the intuition for social justice. और थोड़ा एक आपकी थोड़ी हाई लेवल लिंग्विस्टिक स्किल्स होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स होनी चाहिए. इट शुड गिव एज लाइक सम फिलोसोफर और ब्यूरोक्रेट इज राइटिंग एन एसे, और वो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है. यू नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 30-35 एसेस. सो ही चोज सिम्बॉल्स लाइक चरखा दैट लॉजिकली इंपैक्टेड ब्रिटिश इकोनॉमिकल कोलोनाइजेशन एंड इमोशनली हेल्प हिम कनेक्ट विद द मासेस. तो चरखा कैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से भी उन्होंने लिंक किया एंड यूनाइटिंग द मासेस फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. Also, his choice of salt in Insidium was a visionary decision that connected British exploitative policies with the problem of masses and ensured the mass mobilization. तो आप ये भी आर्ग्यूमेंट इस तरह से की स्टोरी से यू डू द इंट्रो. और दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल जस्ट टू शो यू हाउ यू शुड इंट्रोड्यूस योर एसे. देन उसके अलावा भी यू कैन यूज मेनी डिफरेंट स्टोरीज ऑल्सो. तो एक स्टीव जॉब की भी एक एग्जाम्पल यू कैन यूज. सो स्टीव जॉब, while constructing iPhone, okay, he said that iPhone construction is not only a scientific knowledge or logical thing, it is a right combination of a science and an art, intuitive thinking, okay, and only through by combining this with the logic of mobile phone making, the experience or expectation of customers, okay, he did the awesome blend of the both the things. And so in iPhone making, he merged the high-tech technology with the intuitive user experience and created the best product for the mankind. And thus, you can use that example also. So when developing the iPhone, Steve Jobs combined his intuition for user-friendly design, user-friendly aspects, or what customer exactly need, okay, and with the logical engineering or high-tech knowledge of engineering, he combined both to the best possible result or outcome. So his intuitive belief that people craved a seamless tech experience led to revolutionary device that changed how we communicate. And so through this he managed the seamless integration of his technological experience and intuitive knowledge of customer satisfaction, and both he combined created this awesome product. So you can use this story also. तो इनमें से कोई भी एक स्टोरी लिखना, बट गांधी स्टोरी मोर इंडियन पर्सपेक्टिव है, उसमें इंडियन टच है. सो यूज दैट एंड देन लेटर ऑन यू कैन राइटिंग इन दैट. तो अभी आपका इंट्रो हुआ. देन इन दिस एक 60-70 वर्ड में इंट्रो होने के बाद एक 50-60-70 वर्ड्स में पूरे ऐसे की जिस दो. ओके, प्रोवाइड द एंटायर स्ट्रक्चर, आपने क्या क्या लिखा है आगे. सो यहाँ 70 वर्ड में आई विल गिव द हिंट टू द एग्जामिनर कि आगे मैंने ऐसे में क्या क्या लिखा है, व्हाट टू एक्सपेक्ट. तो यहाँ पे आई विल राइट दैट इन दिस एसे वी विल फर्स्ट डिस्कस ओके द कंसेप्ट और व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय विजनरी डिसीजन मेकिंग. क्या होता है विजनरी डिसीजन मेकिंग, पहले 50-60 वर्ड उस पे होंगे. देन इन द एसे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्यूशन एंड विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लॉजिक. तो ये तीन कॉन्सेप्ट देखेंगे. देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिंक और विल ट्राई टू एस्टैब्लिश लिंक दैट हाउ लॉजिकल थिंकिंग लीड्स टू विजनरी डिसीजंस, व्हाट पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व. Then we'll try to link or understand how intuitive thinking leads to visionary decision making, and how best visionary decision making comes out, okay, at the blend of intuition and logic. Then we'll also discuss some historical examples from different fields or areas where this merge of intuition and with the merging of intuition and logic, people have achieved the great discoveries or reached great decisions. And then in the end, we'll try to understand that why, after understanding why this visionary decision making or how visionary decision making is possible by blending intuition and logic, we will try to understand how we can foster the intuitive thinking in the generation, or how to build intuitive thinking. And also we'll try to discuss how to foster this logical reasoning in the population. तो आपके ऐसे में क्या क्या आपने लिखा है, 70 वर्ड में आपने पूरी जिस्ट दी, आउट एक स्ट्रक्चर दिया उसको. यहाँ पे यू हैवंट एक्सप्लेन एनीथिंग, यू जस्ट हिंटेड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट एसे. अब इसी को आपको सब हेडिंग बनाना है एसे में आगे लिखते वक्त. सो देन सब हेडिंग फर्स्ट, देन मेन बॉडी एज यू गो. तो यू शुड स्टार्ट विद द फर्स्ट सब हेडिंग.
तो मेन बॉडी का जो पहला पार्ट है, तो अभी तक आपका 100-150 वर्ड का ऐसे हुआ, इंट्रो एंड जिस्ट, 150 वर्ड तक आ गए. नेक्स्ट 100 वर्ड्स यू आर गोइंग टू फोकस ऑन ओके डेफिनेशन पार्ट. अब इसमें गाइस कोर डेफिनेशन पार्ट ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन एसे दैट यू हैव टू राइट. तो यहां पे 3 टर्म्स दे हैव मेंशन इन द टॉपिक, विजनरी डिसीजन मेकिंग, इंट्यूशन एंड लॉजिक. तो हम तीनों पे थोड़ा थोड़ा 60-50 वर्ड में डेफिनेशंस लिखेंगे. ओके, डोंट डायरेक्टली जंप इनटू द एसे. टेल एग्जामिनर दैट आई अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स. एंड मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स नॉट व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, मेरे पास कोई नई अंडरस्टैंडिंग है. आई अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट टेक्निकली. I understand all parameters of visionary decision making. I understand all parameter of intuition. I understand all facets of logical reasoning. तो वो टू द पॉइंट एस्टैब्लिश करो एंड देन गो इनटू मेन बॉडी. डोंट डायरेक्टली जंप टू द मेन डिस्कशन. ओके, और डायरेक्टली मेन डिस्कशन में गए तो इस तरह का टफ टॉपिक हो, देन यू विल नॉट, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, या सॉरी ज्यादा वर्ड्स नहीं रहेंगे टू फुलफिल द 1000 वर्ड लिमिट. ओके, इसलिए फिर 100-150 वर्ड उसमें डेफिनेशन पार्ट में आप इन्वेस्ट करो, तो आगे फिर यू विल बी एबल टू राइट और कंप्लीट योर एसे एंड एबल टू रीच 1000 वर्ड्स. तो फिर डिफाइन विजनरी डिसीजन मेकिंग. तो गाइस विजनरी डिसीजन मेकिंग क्या होता है? तो विजनरी डिसीजन मेकिंग में गाइस स्ट्रैटेजिक फॉरवर्ड थिंकिंग डिसीजन मेकिंग. ओके, सो विजनरी डिसीजन मेकिंग इज वेरी स्ट्रैटेजिक. आप सारे प्रोज कॉन्स, स्ट्रैटेजिक, जो आप इथिक्स में आपने ये टर्म पढ़ी होगी, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारी लीडरशिप स्टाइल्स है. तो उसमें स्ट्रैटेजिक मीन्स व्हाट? स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग मीन्स वेरी वेल प्लान्ड. आपको पहले से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, पहले से यू नो व्हाट बैड आउटकम्स कैन कम, यू आर रेडी फॉर कोलैटरल्स. ओके, अगर इस तरह से सिनेरियो क्रिएट होता है, आगे क्या करना है, इस तरह से सिनेरियो क्रिएट होता है तो क्या करना है. यू हैव टेकन इनटू अकाउंट ऑल पैरामीटर्स, प्रोज कॉन्स, डिसीजन मेकिंग. सो विजनरी डिसीजन मेकिंग एक उसका एक पैरामीटर है स्ट्रैटेजिक फॉरवर्ड थिंकिंग डिसीजन मेकिंग, वेरी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग डिसीजन मेकिंग. देन नेक्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग विथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. आप बहुत आगे की सोचते हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. इसमें एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेशन पार्ट है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि महात्मा गांधी इवन बिफोर रीचिंग इंडिया इन 1915, ओके, इन 1909 इन अफ्रीका ही स्टार्टेड राइटिंग बुक हिंद स्वराज. और उस बुक में महात्मा गांधी वॉज राइटिंग कि व्हेन ही विल गो टू इंडिया, he had no idea how many people will follow him, whether he will be mass leader, whether he will be able to create mass movement, और ब्रिटिश काला पानी में डाल देंगे जेल में. He had no absolute idea, but even before coming to India, in Hind Swaraj, he was visualizing or planning कि when India will get independence, what kind of democratic political system, economic system, constitutional system that we will have in India. तो ये long term perspective decision making is called visionary decision making. Then innovative and creative solution to problems. Okay, so innovative, creative solutions to the problem. तो कोई प्रॉब्लम के आप कितने इनोवेटिव न्यू सोल्यूशन, एक डायनामिक सोल्यूशन सोच सकते हो, क्रिएटिव सोल्यूशन सोच सकते हो, दैट इज समथिंग विजनरी डिसीजन मेकिंग. यू गो आउट ऑफ बॉक्स एंड कम अप विथ न्यू सोल्यूशंस, न्यू समथिंग इनोवेटिव. जैसे चैट जीपीटी जैसे कोई एक टूल बनाना, इट्स वेरी इनोवेटिव थिंग. या आधार कार्ड जैसा कोई विजनरी डिसीजन मेकिंग, इट्स वेरी इनोवेटिव, वेरी क्रिएटिव, वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से था एंड एक्सट्रीमली स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. तो इस तरह से आधार का जो एग्जाम्पल है इस, बट अभी एग्जाम्पल मत कोट करना क्योंकि 50-60 वर्ड में आपको ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन करके लिख देने. देन डिसीजन मेकिंग विथ कैलकुलेटेड रिस्क. आप सारे कैलकुलेटेड रिस्क लेके कोई डिसीजन लेते हो, वो भी विजनरी डिसीजन में माना जाएगा, बिकॉज यू प्लान एंड टेक अ डिसीजन प्रॉपरली. देन इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल डिसीजन मेकिंग. विजनरी डिसीजन वो भी होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है, ओके, और डिसीजन दैट मोटिवेट्स पीपल टू अचीव. आप जो विजनरी आपके आइडिया है, यू कम्युनिकेट इट विद द पीपल, टू द पीपल, पीपल आइडेंटिफाई विथ इट, पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय इट, गेट मोटिवेटेड बाय इट एंड एक्ट ऑन दैट डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल द वे इन शिवाजी महाराज क्रिएटेड दिस आइडिया ऑफ स्वराज, not only created that idea of Swaraj with long term perspective, okay, or some new idea, but he communicated it to the masses, inspired them, motivated them, and created a huge force of a patriotic people who are ready to die. So वो भी एक विजनरी डिसीजन में आएगा. सेम इथिकल वैल्यू ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. ओके, देन यू कंडक्ट और कैरी आउट एक्सट्रीमली वैल्यू लोडेड इथिकल डिसीजन, वैल्यू ड्रिवन इथिकल डिसीजंस. तो ये वैल्यू लोडेड इथिकल डिसीजन मेकिंग वो भी एक विजनरी डिसीजन में आएगा. तो ये सारे 5-6 पैरामीटर लिखना, व्हाट इज विजनरी डिसीजन मेकिंग. देन यू कैन गो इनटू डेफिनेशन ऑफ इंट्यूशन.
हाउ यू डिफाइन इंट्यूशन, हाउ यू what is your understanding of intuition, वो भी 40-50 वर्ड में अब लिखो. सो इंट्यूशन मीन गाइज नॉन डिस्कर्सिव कॉग्निटिव प्रोसेस. नॉन डिस्कर्सिव मतलब जिसमें कोई डिबेट या लैंग्वेज का पार्ट नहीं होता. लिंग्विस्टिकली आप उसको कम्युनिकेट नहीं करते, आपके दिमाग में वो प्रोसेस चलती है. सो वो नॉन डिस्कर्सिव वर्ड है. और इस तरह के वर्ड्स यूज करना सीखो आपके एसे में. इट विल गिव वेरी टेक्निकल एज टू योर एसे. सो इट इज अ नॉन डिस्कर्टिव कॉग्निटिव प्रोसेस. Okay, you just think, imagine, you don't talk about, you don't write or chart it out, map it out, या पूरे अल्गोरिदम फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट करते हो या फॉर्मूलाज के इससे. इट जस्ट गोज ऑन इन योर ब्रेन. सो इंट्यूशन इज दिस नॉन डिस्कर्सिव नॉन लिंग्विस्टिक कॉग्निटिव प्रोसेस. इट इज अ होलिस्टिक परसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज. ओके, सो होलिस्टिक परसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज. तो होलिस्टिक आप सारे पैरामीटर एक साथ लेके पूरी सिचुएशन को देख के ओके यू डू द प्रोसेसिंग, ना कि पूरा उसको डिडक्शन करके डिडक्टिव रीजनिंग जैसे करना, हर पार्ट छोटे छोटे पार्ट को एनालिसिस करके सोचना. यू टेक इनटू अकाउंट ऑल पैरामीटर्स एट द सेम टाइम, तो उसको बोला था होलिस्टिक प्रोसेसिंग ऑफ द और प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज. देन सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज. फिर बहुत बार आपकी वो सबकॉन्शियस प्रोसेस चलती है. ओके, कोई चीज सडनली आपके दिमाग में आ जाती है, सबकॉन्शियसली इट ट्रिगर्स योर माइंड. तो ये जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड आपको बहुत हेल्प करता है. तो बहुत सारी चीजें आप दिन भर उसके बारे में सोचते हो, बट व्हेन यू आर इन स्लीपिंग एट नाइट, ओके, इन अ ड्रीम्स मेनी थिंग्स स्टार्ट गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज. तो वो भी एक सबकॉन्शियस प्रोसेस. और ये सबकॉन्शियस प्रोसेस ऐसे नहीं कि नींद में ही चलती है. इट कैन हैपन इवन यू आर अवेयर. जैसे आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की थियरी डिस्कवर की, वाज अ सबकॉन्शियस इंट्यूशन प्रोसेसिंग और लॉजिक दोनों का ब्लेंड था. तो आइंस्टाइन स्टडीड लॉट ऑन ग्रेविटी. टेक्निकली बहुत लॉजिकल बहुत कुछ चीजें पढ़ी थी. बट वन डे ही वाज जस्ट सिटिंग इन हिज ऑफिस, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. आगे वाली बिल्डिंग पे कुछ लोग काम कर रहे थे, एंड ही जस्ट हैड दिस थॉट एक्सपेरिमेंट कि अगर ये आदमी गिर जाए बिल्डिंग से, ओके, देन व्हाई ही विल फील वेटलेस, व्हाई ही इज फीलिंग वेटलेस, एटसेट्रा. दैट ही स्टार्टेड टू इमेजिन. और वो थॉट एक्सपेरिमेंट, वो इंट्यूशन, ओके, लेड हिम टू कम अप विद द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी. तो ये जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी आना वाज दैट सबकॉन्शियस माइंड दैट वाज वर्किंग. तो इंट्यूशन मतलब सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज, अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज. देन इमोशनल एंड सब्जेक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. फिर बहुत बार आप इंफॉर्मेशन सिर्फ कॉग्निटिवली नहीं सोचते, ओके, फैक्चुअली नहीं सोचते इंफॉर्मेशन के बारे में. यू थिंक अबाउट इंफॉर्मेशन in a subjective processing way. Okay, you emotionally try to understand the information, subjectively try to understand information. Objectivity से नहीं देखते दुनिया, factual quantification से दुनिया नहीं देखते. You look at the world in a emotional manner. और आपके जो judgments है intuition में are judgments, emotion guided judgments, वो intuition में आते हैं. वो emotional subjective processing of information. फिर creative pattern recognition, उसमें इंट्यूशन में भी ये भी आता है. क्रिएटिव पैटर्न आप इंफॉर्मेशन में रिकॉग्नाइज करते हो. रॉ डेटा को आप होलिस्टिकली देखते हो, सडनली यू गेट द सम क्रिएटिव पैटर्न. इट क्लिक्स टू योर माइंड, इट कम्स टू योर माइंड. तो वो क्रिएटिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और क्रिएटिव पैटर्न रिकॉग्निशन, ये भी एक फैसेट है इंट्यूशन का. देन रैपिड प्रोसेसिंग बैक्ड बाय गट फीलिंग. फिर आप बहुत रैपिड प्रोसेसिंग करते हो बैक्ड बाय द गट फीलिंग. ओके, तो एक मतलब बहुत बार अगर आपको लॉजिकली सोचना हो किसी चीज के बारे में, यू टेक इनटू अकाउंट ऑल पैरामीटर्स, प्रोज कॉन्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सारे कैलकुलेशन आप करते हो. बट इन इंट्यूशन, ओके, विथ योर लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस दैट हैज बीन डेवलप्ड, यू सडनली टेक अ डिसीजन एंड क्विकली डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. ओके, तो इस तरह की जो प्रोसेसिंग होती है, रैपिड प्रोसेसिंग बैक्ड बाय द गट फीलिंग. तो ये रैपिड प्रोसेसिंग बैक्ड बाय गट फीलिंग, ये भी एक इंट्यूशन का पार्ट आता है. तो उसको भी थोड़ा आप डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना. तो 50, 60, 70 वर्ड्स में ये सारे टर्म लिख देना एंड एक्सप्लेन दैट आई एंड द एग्जामिनर दैट आई नो द इंट्यूशन. देन डिफाइन लॉजिक. लॉजिक तो बहुत इजी है, बचपन से आपने लॉजिक के बारे में सुना है. आप सीसेट का पेपर भी दे रहे हो, सीसेट के पेपर में आप जो भी कर रहे हो, ओके, वहां पे ज्यादा गट फीलिंग, इंट्यूशन से ज्यादा यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ये जो साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी है, वो लॉजिक वो लिखनी है पूरी. तो मैंने जो KSG के खान स्टडी ग्रुप के क्लासेस थे मेरे, उसमें एक जो टॉपिक में डिस्कस करता हूँ, साइंस रिलीजन, आई टोल्ड यू. तो वहाँ पे मैं पूरी साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी क्या होता है वो डिबेट करता हूँ. वही साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी आपको यहाँ पे लिखनी है. सो व्हाट इज लॉजिक और साइंटिफिक मेथड? सो सिस्टमैटिक एंड रैशनल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. ओके, सो सिस्टमैटिक एंड रैशनल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग.
आप हर कोई चीज सिस्टमैटिकली सोचते हो, रैशनली सोचते हो, और वो सारे सिस्टमैटिक रैशनल पैरामीटर पे बेस्ड यू टेक द डिसीजंस. देन स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग साउंड कंक्लूजन. फिर आप स्ट्रक्चर्ड वे से कोई स्टडी करके, सिस्टमैटिक वे से कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट वगैरह करके यू कम टू द फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग साउंड कंक्लूजन. आप एक साउंड कंक्लूजन्स रीच करते हो. यू प्रॉपरली फ्रेम योर एक्सपेरिमेंट्स और यू कलेक्ट डेटा और उसको सिस्टमैटिक मेथड से स्ट्रक्चर्ड वे से स्टडी करते हो. उसको बोलाता है लॉजिकल रीजनिंग. देन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ये भी आता है. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. उसी के लिए जो दो वर्ड है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग. डेकार्ट, आई गेस ही गेव दिस आइडियाज ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग फॉर फर्स्ट टाइम. तो ये डिडक्शन एंड इंडक्टिव रीजनिंग वो भी एक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आता है. देन क्वांटिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ डेटा. यहां इंट्यूशन में मैंने क्या बोला, सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ डेटा आता है. लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिक में you have the objective analysis of data. Quantification, everything well quantified. Value of gravity is 9.8 meter per second square. Quantification. Objectively you look at the data. Okay, you keep emotions aside, you keep your opinion, biases aside, and you only take decision on based of facts. Okay, merit. Okay, that is your objective decision making. Quantification. And then empiricism, experimental analysis and establishing cause effect relationship. ये भी उसी में आता है. empiricism और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, ओके, और एस्टेब्लिशिंग द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. हर कोई चीज इंपेरिसिज्म मतलब क्या, एक इंपेरिकल रिसर्च करके कोई भी चीज आप बायस से, ओपिनियन से, गट फीलिंग से नहीं डिसाइड करते. एक प्रॉपर रिसर्च फ्रेमवर्क करके, इंपेरिसिज्म से, ओके, एक्सपेरिमेंट करके, एनालिसिस से, एंड प्रॉपर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स वगैरह ढूंढ के, पैटर्न्स वगैरह अंडरस्टैंड करके ही डिसीजन लेते हो. तो दैट इज योर लॉजिकल रीजनिंग. तो ये आपने एक बेसिक तीनों की डेफिनेशन दी, विजनरी डिसीजन मेकिंग, लॉजिक एंड द इंट्यूशन. तो अब आपके 150 वर्ड हो गए. पहले इंट्रो और जिस्ट के 100-150 वर्ड, तो आपका 300 वर्ड तक ऐसे हो चुका है. नाउ आगे 400 वर्ड यू नीड टू फोकस ऑन द मेन बॉडी. ओके, सो मेन बॉडी में दोनों को आपको एस्टेब्लिश करना है, दैट हाउ दिस इंट्यूशन इज लिंक्ड विद द डिसीजन मेकिंग, हाउ लॉजिक इज लिंक्ड विद द डिसीजन मेकिंग, और दोनों की इंटरसेक्शन हो तो बेस्ट पॉसिबल आउटकम. तो उसमें एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ विजनरी डिसीजन मेकिंग विद द इंट्यूशन. तो विजनरी डिसीजन मेकिंग का इंट्यूशन से क्या क्या रिलेशन है, कैसे इंट्यूशन मदद करता है विजनरी डिसीजन मेकिंग को. तो आपको ओके यहां पे फिर वो जो डेफिनेशन के पार्ट में आपने चीजें लिखी थी, दैट इज ये नॉन डिस्कर्सिव कॉग्निटिव प्रोसेस, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग, क्रिएटिव पैटर्न रिकॉग्निशन, इन्हीं को यूज करना है अब ये सारा फैक्टर एक्सप्लेन करने में. That intuition helps us look at the big picture, at the problem involved. It helps us creatively come up with innovative solutions to the same problem, existing problem. Subconscious minds help you create patterns, organize data, organize pattern in a manner that your logical mind will never allow. So ये subconscious logic will never able to show, and that's why intuition will help you come up with the legendary solutions. तो आप इंट्यूशन का रोल लिखो विजनरी डिसीजन मेकिंग में 50 वर्ड में, उसी पॉइंट्स को यूज करके. सो एक्सप्लेन हाउ इंट्यूशन हेल्प ट्रांसेंड लीनियर रीजनिंग टू प्रोड्यूस क्रिएटिव रिजल्ट्स. सो इंट्यूशंस, ये लीनियर रीजनिंग जो होता है, लीनियर लॉजिकल रीजनिंग, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, फैक्चुअल रीजनिंग, ओके, पैरामीटर बेस्ड रीजनिंग, इससे आगे आपको लेके जाता है, वन स्टेप अहेड ऑफ दैट. और बिकॉज ऑफ दैट वी कम अप विद द इनोवेटिव सॉल्यूशंस, क्रिएटिव सॉल्यूशंस, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस. And that's how intuition, okay, help us understand the other side of the reality. तो आप वो intuition को justify करो, how it plays role in the visionary decisions. Then you explain relation of visionary decision making with the logic. Okay, बहुत चीजें जो हमारे माइंड को समझ नहीं आएगी, okay, ऐसी चीजें डेटा एनालिसिस, ओके, डेटा एनालिटिक्स कोई आप रन करते हो, कोई प्रॉपर डेटा को टैबुलेट करते हो, तो बहुत सारी चीजें उससे समझ में आती है. सो बहुत सारी चीजें गाइस लॉजिकल रीजनिंग, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, क्वांटिफिकेशन करके वी गेट द डिफरेंट पिक्चर. एक ऐसे ट्रेंड समझ में आते हैं जो आपको पूरे रॉ डेटा के पास देख के नहीं समझ में आते. तो फॉर एग्जांपल मैं जो ऐसे टॉपिक में मेरे केएसजी के लेक्चर्स में मैं एक विमेन और जेंडर इश्यूज को डिस्कस करता हूं, तो उसमें मैं एक टॉपिक बताता हूं कि सन मेटा प्रेफरेंस. तो ये सन मेटा प्रेफरेंस की जो बात है, अनवांटेड गर्ल्स का जो टॉपिक है, ये डेटा अनवांटेड गर्ल्स कितनी है इंडिया में, सन मेटा प्रेफरेंस, ये आपको ओवरऑल डेटा को देख के समझ में नहीं आएगा.
रॉ डेटा को, बिग पिक्चर इंडिया का देख के, तो हमें लगेगा कि इंडिया में लड़कियां ज्यादा है। इंट्यूशन हमें यह बताएगा कि इंडिया के पॉपुलेशन में राइट नाउ इन 2023 देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज, बट यस देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज बिकॉज देयर इज समथिंग काइंड ऑफ थिंग कॉल्ड सन मेटा प्रेफरेंस, कि इंडिया के लोग अगर पहला लड़का पैदा हुआ दूसरे बच्चे को नहीं जाएंगे, पहली लड़की पैदा हुई दूसरे बच्चे को जाएंगे, दूसरी लड़की पैदा हुई तीसरे बच्चे को जाएंगे, तीसरी लड़की पैदा हुई चौथे बच्चे को जाएंगे, चौथा लड़का हुआ रुक जाएंगे। बट इस चक्कर में जो 3 लड़कियां पैदा की दैट इज अनवांटेड गर्ल्स, और इसकी वजह से इंडिया में देयर आर मोर गर्ल्स नाउ देन द बॉयज। और ये हमें बिग पिक्चर देख के समझ में नहीं आएगा, ये डेटा को प्रॉपर्ली टैबुलेट करना पड़ेगा, लॉजिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग करने पड़ेंगे, और ये करने के बाद फिर हमें समझ में आता है ओके सेक्स रेशियो ऑफ लास्ट चाइल्ड अगर हम देखते हैं टैबुलेट करके, ये सन मेटा प्रेफरेंस कितना स्ट्रांग है इंडियन पॉपुलेशन में समझ में आता है। तो यही आपको लिखना है कि बहुत सारी चीजें ओके जो हमें इंट्यूशन बिग पिक्चर गट से समझ नहीं सकते, वो हमें समझ में आती है थ्रू प्रॉपर कैलकुलेशन एनालिसिस। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिखना है तो न्यूटन का भी एक एग्जाम्पल आप लिखो, जैसे अभी एक मैंने एग्जाम्पल बताया अनवांटेड गर्ल्स का। अब न्यूटन को तो एप्पल जब गिरा ओके ही हैज नाउ इंट्यूटिव फीलिंग, हजारों सालों से लोगों को पता था एप्पल नीचे ही गिरता है, बट व्हेन एप्पल फेल डाउन ही लुक्ड अप एंड ही सॉ द मून एंड ही देन हैड अ इंट्यूशन और थॉट कि व्हाई मून इज नॉट फॉलिंग। अब ये मून क्यों नहीं गिर रहा, इसके लिए कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी बना के फायदा नहीं है, कोई इंट्यूटिव स्टोरी बना के। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाई मून इज नॉट फॉलिंग। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स लॉजिक्स he did lot of experiment, lot of logic, and with lot of experiment and logic he came up okay with the theory of gravity, the formula, and explained okay how moon is a freely falling body and it is not falling, and entire gravity ka mechanism. So he did a very logical reasoning, okay, deductive reasoning, experimental reasoning, वो empiricism का जो part था. So how Newton guys okay used this systematic and rational approach to understand gravity. He did a structured experiment, empiricism. He quantified and objectively analyzed the data, used deductive inductive reasoning to come to the formula. तो आप ये भी explain करो ऐसे में that how okay explain relation, how visionary decision making leads to logic. तो so that so word इस पे, so that so word इस पे. So explain how logical analysis help reach a systematic conclusions, and without logical analysis systematic conclusions won't be possible. तो आपने दोनों की लिंक एस्टैब्लिश की विजनरी डिसीजन मेकिंग से। नाउ दोनों का बेस्ट ब्लेंड हो देन यू विल हैव द बेस्ट आउटकम। ये आपको फिर आगे 200-250 वर्ड उस पे लिखने। नाउ सो गो अहेड इन द टॉपिक एंड एक्सप्लेन हाउ इंटरप्ले ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक लीड्स टू विजनरी डिसीजन। इन दोनों का इंटरप्ले ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक लीड्स टू विजनरी डिसीजंस। तो फिर इन दोनों में ये दोनों साथ में होता है तो क्या, तो इन दोनों को अभी तक जो इंफॉर्मेशन लिखी 100-150 वर्ड इनको दोनों को मर्ज करके आपको लिखना है। और यहां ज्यादा एग्जांपल से जस्टिफाई करो कि कैसे ये हुआ था, तो एग्जांपल्स की भी हेल्प लो तो 100-200 वर्ड आराम से लिख पाओगे। सो हाउ इंटरप्ले की इंट्यूशन एंड लॉजिक, कि लॉजिकल माइंड के भी लिमिटेशन है, लॉजिकल डेटा के भी लिमिटेशंस है, या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते वक्त या इंफॉर्मेशन में यू डोंट हैव द ऑल द डेटा अवेलेबल टू यू, ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया का रॉ पॉपुलेशन, सारा डेटा तो हमें पॉसिबल नहीं होता हमेशा कलेक्ट करना, या 10 साल में एक आध बार हम जनगणना या पॉपुलेशन सेंसस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो सैंपल डेटा है वो सैंपल डेटा लेके भी लॉजिकल डेटा लेके उसको समझ के हम हायर लेवल पैटर्न को जज करते हैं कि इंडिया में ऐसा हो रहा होगा क्योंकि दिस सैंपल सर्विस शोज। तो इंट्यूशन का पार्ट है कि इतने छोटे सैंपल पे डेटा लेके लॉजिकल एनालिसिस करके हायर लेवल पैटर्न समझना, तो इंट्यूशन तक पहुंचना। या आईएमडी बहुत सारा जो डेटा कलेक्ट करता है आपके एनवायरमेंट का या मॉनसून वगैरह रिलेटेड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, और पिछले बहुत सारे सालों से जो डेटा कलेक्ट किया, अभी का जो डेटा कलेक्ट किया, सारा मिक्स करके ये जो आईएमडी के साइंटिस्ट हैं दे यूज देयर गट फीलिंग इंट्यूशंस ओके ऑन दिस लॉजिकल डेटा टू गिव द प्रेडिक्शंस अबाउट द इंडियन मॉनसून। तो लॉजिकल एनालिसिस हमेशा पूरे एंड चीज तक नहीं लेके जाएगा, इंट्यूशन कैन बी वेरी मिसलीडिंग, तो इसलिए लॉजिक एंड इंट्यूशन दोनों साथ में हो ओके, लॉजिक बैक्ड बाय इंट्यूशन और इंट्यूशंस बैक्ड बाय लॉजिक, वी कैन डेफिनेटली कम एट द वेरी ऑसम विजनरी डिसीजंस। तो ये 1-2 एग्जांपल आप लिख दो ऐसे में ओके। सो एक्सप्लेन देयर इंटरप्ले हाउ इंट्यूशन एंड लॉजिक लीड्स टू विजनरी डिसीजन। देन ड्रॉ पैरेलल्स टू फिलोसॉफिकल ड्युअलिटीज लाइक रीजन वर्सेस इमोशन।
फिर आप इसको थोड़ा फिलोसॉफिकली भी एक्सप्लेन करो। बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो बात की थी कि रीजनिंग माइंड एंड इमोशनल माइंड, या आईक्यू और ईक्यू, जो आपके इथिक्स के पेपर में आप पढ़ोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस दोनों टाइप का होता है, एक एनालिटिकल इंटेलिजेंस लॉजिकल रीजनिंग, और दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस दैट इज इंट्यूटिव रीजनिंग। तो लॉजिक, इंट्यूशन, आईक्यू, ईक्यू, उसके भी बारे में थोड़ा बहुत लिखो। एंड दोनों जरूरी होना, हर डिसीजन सिर्फ आप रॉ एनालिसिस से नहीं ले सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम भी एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट कर सकता है गवर्नेंस में। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो शुड बी एनालिटिकली राइट, लॉजिकली राइट, एज वेल एज टेस्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इमोशनल रीजनिंग। तो दोनों का परफेक्ट ब्लेंड करके you take the decision. Okay, then explore how intersection of intuition and logic has driven creative innovation and groundbreaking discoveries in various fields. Okay, then explain how intersection of intuition and logic has driven creative innovation and groundbreaking discoveries. तो अब दो चार एग्जाम्पल से अभी तो जो आपने डेटा लिखा उसको और जस्टिफाई करो। अब बहुत बार मैं ये स्टूडेंट्स को बताता हूं आंसर राइटिंग में, एसे राइटिंग में, कि एग्जाम्पल इज नॉट द एसे। आप फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट लिखो और उसके सपोर्ट में एग्जाम्पल लिखो। लेकिन बहुत बार इस तरह का बहुत टफ ऐसे आए जहां पे आपको ज्यादा फिलोसॉफिकल बेस नहीं है लिखने को, तो आप अच्छे एग्जाम्पल लेके, क्वालिटेटिवली बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके भी ऐसे को जस्टिफाई करो, लेकिन सिर्फ पूरे एग्जाम्पल मत लिखना। तो अभी तक हमने जैसे थोड़ा फिलोसॉफिकल डिबेट किया है ऑलरेडी, हमने विजनरी डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इंट्यूशन क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, ये डिबेट किया। लॉजिक से क्यों विजनरी डिसीजन मेकिंग होगा, इंट्यूशन से क्यों विजनरी डिसीजन मेकिंग होगा, उसमें बहुत सारा फिलोसॉफी लिखा है। ओके, और दोनों का इंटरप्ले आए तो बेस्ट आएगा। तो थोड़ा बहुत फिलोसॉफी हो चुका है। तो अब 100 to 100 वर्ड, 4-5 एक स्ट्रेट लाइन में एक बेस्ट एग्जांपल्स लिखो। और पहले वाला एग्जांपल रिपीट मत करना जो इंट्रो में लिखे। तो गांधी का एग्जांपल वहां पे डिस्कस किया था, मत लिखो, दूसरे वाले लिखो। तो उसमें आई विल टॉक अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि हाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन विथ हिज ट्रिमेंडस नॉलेज ऑफ फिजिक्स, लॉजिक, बैक बाय द थॉट एक्सपेरिमेंट दैट ही कंडक्टेड। आइंस्टाइन ने कभी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, he just did a thought experiment, came up with his formulas, okay, theoretical ideas। बाकी लोगों ने इनको बाद में टेस्ट किया। या मैंने जो बताया था कि बहुत बार लॉजिकली हम कोई चीज सोचना चाहते हैं, ओके, वो पॉसिबल नहीं बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ द टाइम और सिचुएशंस के। आइंस्टाइन जब ग्रेविटेशनल वेव की थ्योरी दे रहे थे, व्हेन ही वाज गिविंग दैट थ्योरी, ओके, दैट टाइम इट वाजंट पॉसिबल एट ऑल यूजिंग फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स और लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स to understand this gravitational wave, even detect gravitational waves। लेकिन उन्होंने जो भी थ्योरीज दी बाय लॉजिक एंड थॉट एक्सपेरिमेंट, इंट्यूशन, 100 साल बाद हमने उस पर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनाई उनके। आज हमारा फिजिक्स इतना एडवांस्ड हुआ कि वी कुड नाउ टेस्ट आइंस्टाइन्स थ्योरी, एंड वी टेस्टेड आइंस्टाइन्स थ्योरी, एंड बाय टेस्टिंग दैट फाइनली आइंस्टाइन गॉट प्रूव्ड इवन इन लास्ट थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो वो भी आपके एग्जाम्पल लिखो कि बहुत बार लॉजिक के लिमिटेशंस है, तो इंट्यूशन की मदद लेके भी ग्रेट विजनरी डिसीजन हो सकते हैं, ओके, दैट आइंस्टाइन डिड। तो ये आप बहुत ऑसम वे से आइंस्टाइन का थॉट एक्सपेरिमेंट्स, वो थॉट, इंट्यूशन एंड एक्सपेरिमेंट, लॉजिक, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है थॉट एंड एक्सपेरिमेंट का। देन स्टीव जॉब्स एंड आईफोन, इंट्यूशन अबाउट यूजर एक्सपीरियंस एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। तो वो भी पॉइंट मैंने पहले ही बताया था। वहां अगर गांधी का लिखा है अपने एग्जाम्पल, तो यहां यू कैन राइट अ स्टीव जॉब्स एग्जाम्पल। देन पेनिसिलिन डिस्कवरी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो भी एक स्टोरी आप लिख सकते हो। इंट्रो में भी ये स्टोरी अच्छे से लिख सकते थे। द ग्रेट लीजेंडरी रिवोल्यूशनरी, ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज एक्चुअली डूइंग रिसर्च ऑन अ बैक्टीरिया। एक पेट्री डिश में ही हैज ग्रोन अप अ बैक्टीरियल कल्चर, और वो काम करते वक्त वन डे ही वाज जस्ट हैविंग अ लंच, और लंच करते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वो प्लेट में जाके गिरा। आफ्टर 2-3 days व्हेन ही वेंट बैक टू हिज लैब, वो पेट्री डिश उसने निकाली, एंड ही ऑब्जर्व कि वो जो ब्रेड का टुकड़ा गिरा है उसके आजू बाजू, ओके, सारे बैक्टीरिया मर चुके हैं, वो कल्चर गॉट डिस्ट्रॉयड, ओके, वहां पे, और वो ब्रेड पे एक फंगस ग्रो कर चुका है। नाउ नॉर्मल पर्सन कुड हैव इग्नोर्ड दैट फैक्ट, बट बीइंग अ साइंटिस्ट ही हैड अ लॉजिकल माइंड, एंड देन इट आल्सो क्लिक टू हिम, इंट्यूशन, यार वेदर इन दैट ब्रेड इज देयर समथिंग इन दैट फंगस, ओके, दैट कॉज दिस। And through that intuition and backed by his scientific knowledge, he did a few experiments, and then he came up with the understanding that fungus releases these antibiotics that can kill bacteria, and with them he invented penicillin, which is become lifesaver to increase the lifespan. And so penicillin, such a visionary discovery, would not have been possible unless, okay, it is a perfect blend of intuition and logic। तो आप ये भी एग्जाम्पल लिखो। तो आप एग्जाम्पल भी लिख रहे हो ना, तो वो एग्जाम्पल इतने स्ट्रॉन्ग, सॉलिड होने चाहिए एंड अनबायस्ड,
शुड नॉट बी एनी लाइक उसमें कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी वेरी वेल एस्टेब्लिश एग्जाम्पल्स और वेरी पावरफुल एग्जाम्पल्स. वो एग्जाम्पल पढ़ के एग्जामिनर को लगे कि या दिस पर्सन हैज अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल. देन चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो भी है. नाउ डार्विन वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, ऑब्जर्विंग डिफरेंट फ्लोरा, फाउना एटसेट्रा. बहुत रॉ डेटा हर जगह से उसने कलेक्ट किया था. एंड देन सडनली ही रियलाइज्ड द कॉमन पैटर्न. तो मैंने यहां पे आपको इंट्यूशन किसमें भी जो बोला था कि क्रिएटिव पैटर्न रिकॉग्निशन. तो दैट्स व्हाट डार्विन डिड विद ऑल रॉ डेटा ऑफ डिफरेंट animals, plants that he collected, different fossils he collected. Suddenly he had the creative pattern through in a proper theory of evolution and gave to the world such an awesome understanding of evolution. Okay, so this is how you can explain Darwin's theory of evolution is a perfect outcome of intuition and logic, interplay of intuition and logic. Then DNA discovery by Watson and Crick. ये भी डीएनए की डिस्कवरी. उस टाइम पॉसिबल नहीं था कि सेल में न्यूक्लियस ब्रेक करके डीएनए का स्ट्रक्चर समझना. बट विथ ऑल द रॉ डेटा इन लोगों ने बहुत थॉट एक्सपेरिमेंट्स या थॉट डाल के, ओके. और आई गेस वैटसन और क्रिक में से किसी को ड्रीम में एक ऐसा क्लिक हुआ था कि ऐसा पैटर्न दिखा था कि डीएनए कुड बी दिस वे, एंड सडनली दे अंडरस्टूड ऑल द प्रोसेसिंग एग्जैक्ट नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ दैट डीएनए. तो डीएनए की डिस्कवरी वॉज ऑल्सो ग्रेट इंटरप्ले ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक. तो आप ये 4-5 एग्जाम्पल्स, ओके, यहां पे तो गांधी का मैंने इंट्रो में डाल दिया. तो ये 5 एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी सॉलिड एग्जाम्पल्स. फिर यहां पे भी मैंने लॉजिक केस में वो अनवांटेड गर्ल्स के रिलेटेड जो एग्जाम्पल था वो भी बताया था. तो वो भी इस तरह के 1-2 एग्जाम्पल्स आप लिख के यू कैन जस्टिफाई योर एसे. तो अब इस पे 200-250 वर्ड लिखे, ऑलमोस्ट 700-800 वर्ड का एसे हैज बीन कंप्लीटेड. तो अब आपको एसे में एंड लास्ट 150 वर्ड लिखने हैं. सो डोंट लीव द एसे विदाउट एनी सोल्यूशंस. हर ऐसे में जहां पॉसिबल हो सोल्यूशन लिखो. और यहां पे तो की टर्म्स है, तो सोल्यूशन इज वेरी इजी. तो यहां पे सोल्यूशन क्या होगा, दैट इज हाउ टू डेवलप इंट्यूशन. ओके, 70-80 वर्ड्स इस पे लिखो. देन राइट हाउ टू फॉस्टर लॉजिक. लॉजिक कैसे डेवलप करो, इस पे 60-70 वर्ड लिखो. और दोनों डेवलप कर पाए देन विजनरी डिसीजन मेकिंग तो अपने आप आ जाएगा बाय इट्स ब्लेंड. तो आप how to develop intuition, how to develop logic, 70-75 word must. Okay, so practice how to develop intuition. तो पहला है practicing mindfulness. Only in a calm mind, peaceful mind, इस तरह के क्रिएटिव पैटर्न जनरेट होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट वर्किंग. तो इसलिए हाउ मच यू रिलैक्स योर माइंड, काम योर माइंड, एंड दैट्स हाउ विपश्यना मेडिटेशन, माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल ग्रेट साइंटिस्ट, ओके, दे कम टू इंडिया to do this vipassana technique, to practice this vipassana technique. Even you can use here a reference example of Yuval Noah Harari. So in most of his interviews he has explained or exclusively told कि ये जो different thoughts उसके दिमाग में आते हैं is largely because he harnesses this power of vipassana. Every year he comes to India for 10-20 days and does this vipassana, okay, and this totally changes his way of looking at the world. और बहुत बार उसने इस बात पे बात की है कि पावर ऑफ विपश्यना मेडिटेशन इन चेंजिंग हिज थॉट प्रोसेस. तो आप वो भी एग्जांपल यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हो. देन जर्नलिंग इंट्यूटिव इनसाइट्स. आपको मन में कभी भी कोई भी इंट्यूटिव इनसाइट आती है, बहुत वो इलॉजिकल भी लगे, उसको ड्रॉ करो, उसको लिखो. तो जर्नलिंग ऑफ दिस इंट्यूटिव इनसाइट इज ऑल्सो वन टेक्निक ऑफ डेवलप इंट्यूशन. देन डेवलपिंग एम्पैथी. एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग इमोशनल साइड आपकी पर्सनैलिटी की होनी चाहिए, एम्पैथेटिक साइड होनी चाहिए. इट हेल्प्स टू गाइड इमोशनल डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस. सो ट्रस्टिंग इमोशंस और डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्यूशन डेवलप करने का. देन यू कैन ऑल्सो डेवलप क्रिएटिव एक्सरसाइजेस, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा. आप कितना क्रिएटिविटी एक्टिविटी में फोकस करते हो, खुद को इन्वेस्ट करते हो, दैट क्रिएटिव थिंकिंग कैन ऑल्सो हेल्प you develop the intuition. Then open mindedness and feedbacks. Okay, you should have open mind. then कि आप कोई भी लॉजिकल चीजें सोच भी रहे हो और कोई उसको काउंटर कर रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट सुनो एंड देन ट्राई टू आंसर दैट, ट्राई टू सॉल्व दैट. अब डार्विन पे बहुत सारे लोग बहुत होपलेस आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं. ओके, तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स है, ओके, उनको रिजेक्ट नहीं करना इन द फर्स्ट प्लेस. नो साइंटिस्ट विल डू. ही विल लिसन इवन टू द मोस्ट होपलेस आर्ग्यूमेंट and will explain logically or will try to explain, और अगर वो explain भी नहीं कर पाए, he will try to know the answer, search the answer. तो इस तरह से अगर open mind हो then only you can reach the intuition. क्योंकि intuition में बहुत out of box thinking करना पड़ता है.
ओके, इंट्यूशन में कोई ऐसे पैटर्न होते हैं जो लॉजिकली आपको जस्टिफाइबल भी ना लगे, लेकिन तभी तो उसको इंट्यूशन बोला जाता है, और यही इंट्यूशन आगे आपको काफी आगे लेके जाता है। तो इस तरह से आपको ओपन माइंड होना काफी जरूरी है, ओपन माइंडेडनेस का इनकलकेट करना लोगों में, और ये चीजें अगर हम इनकलकेट कर पाए देन वी विल बी एबल टू डेवलप वेरी strong intuitive personality through meditation, vipassana, developing emotional intelligence, creative activities, and open mind. Then how to foster logic? ये तो आपने बचपन से सीखा है. This is what Nehru is saying in Discovery of India: develop scientific temper, rational reflection. So developing formal logic, formal logical system to look at the world, understand the world from mathematical models to systematic experiment, etc. देन प्रैक्टिसिंग क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज पे क्रिटिकली सोचो, रैशनली रिफ्लेक्ट करो, ओके, क्वेश्चन एनीथिंग यू क्वेश्चन ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, ओके, क्वेश्चन विद डिफरेंट क्या कहते हैं उसे, फैक्ट्स और नॉलेज। तो हर चीज को क्वेश्चन करो अलग अलग तरीके से, क्रिटिकली एनालिसिस करो, ओके, हर वो अजम्पशन जो दिया है उसको वैलिडेट करने का ट्राई करो या इनवैलिडेट करने का ट्राई करो, एंड थ्रू दिस क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, यू कैन डेवलप द लॉजिक। देन यू कैन ऑल्सो ब्रॉडनिंग द पर्सपेक्टिव विथ रीडिंग, वाइड रीडिंग। लॉजिक आपका जितने ज्यादा पढ़ोगे, जितना नॉलेज एक्वायर करोगे, वो बढ़ता जाता है। ओके, लाइक आइंस्टाइन इतने साल अपने लैब में बैठ के, नॉट लैब सॉरी, अपने लाइब्रेरी में बैठ के जो भी पेटेंट्स एप्लीकेशन आते थे वो सारे पढ़ता था, एंड बाय सच अ वाइड रीडिंग ही डेवलप सच अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस, और यही आगे जाके हेल्प हिम टू अचीव द जनरल रिलेटिविटी। देन माइंड मैपिंग, ओके, माइंड मैपिंग, ये भी एक माइंड मैपिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, आप उनके बारे में भी लिखो। देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ओके, लॉजिकली बहुत सारी चीजें आप नहीं सोच सकते जो कंप्यूटर सोच सकता है, ओके, तो या बहुत जरूरी है टू डेवलप लॉजिक। एंड देन टेक्नोलॉजिकल एड्स, आप टेक्नोलॉजी की भी मदद ले सकते हो, बहुत सारे एडवांस डेटा एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो उनको डेटा फीड करके यू कैन ट्राई टू कम अप टू द हायर लेवल डिसीजंस। तो ये टेक्नोलॉजिकल एड्स लेके भी आप डेवलप कर सकते हो लॉजिक को। एंड देन आईक्यू एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो आपका सीसैट का पेपर है, ऐसे बहुत सारे आईक्यू टेस्ट, सीसैट के पेपर, एप्टीट्यूड टेस्ट दे के बचपन से ऐसे बुद्धिमत्ता, व्हाट वी कॉल टेस्ट, ये देके भी यू डेवलप योर लॉजिक। तो आपने 60-70 वर्ड में हाउ टू डेवलप इंट्यूशन, 60-70 वर्ड में हाउ टू डेवलप लॉजिक, ओके, एंड देन गो टू द कंक्लूजन। नाउ कंक्लूजन में आपको जनरली दो चीजें मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिकली कंक्लूड करो, और अगर ऑप्टिमिज्म पॉसिबल नहीं है देन समराइज, कि अभी तक जो जो लिखा था वो समराइज करो। यहां पे मैं थोड़ा समराइजेशन करूंगा, ओके, एंड आई विल ट्राई टू एस्टैब्लिश कि ये जो विजनरी डिसीजन मेकिंग है, इंट्यूशन और लॉजिक के मर्ज से पैदा होता है, ये क्यों जरूरी है फ्यूचर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, एंड व्हाई वी शुड नीड टू डेवलप दैट इन आवर किड्स। सो व्हाट आई विल डू इन दिस एसे नाउ, कंक्लूजन कैसे लिखूंगा मैं, तो 60-70 वर्ड्स में आई विल राइट, सो टिल नाउ वी अंडरस्टूड that how intuition plays the role in visionary decision making, and at the same time logic also has its place in the visionary decision making. But when we have the perfect interplay of the two, okay, we will be able, we can achieve at a extremely awesome or visionary decision makings. And even many historical examples have shown that right combination of two has led to great discoveries for the mankind. And this intuition and logic is which results into a creative decision making, visionary decision making, is not something inborn, okay, or not something unnatural, but this is the quality that can be fostered, okay, qualities that can be developed into human being. तो अभी तक हमने जो जो ऐसे में लिखा था वो मैंने समराइज कर दिया कि इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने वो जस्टिफाई किया, और ये क्वालिटीज डेवलप की जा सकती है। तो ये समराइजेशन करके देन नेक्स्ट 2 लाइन्स आई विल ऐड, एंड देन आई विल ऐड ऑन दैट हाईलाइट फॉर रीडर सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिएटिव टेंशन बिटवीन लॉजिक एंड इंट्यूशन एज दे नेविगेट द डिसीजन मेकिंग, एंड देन आई विल टेल माई लीडर्स, एंड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे की मेरी लाइन होगी कंक्लूजन में, कि दिस इंट्यूशन एंड लॉजिक, दिस क्वालिटीज आर नॉट नेचुरल और इनबॉर्न बट कैन बी डेवलप्ड, एंड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडर्स टू अंडरस्टैंड दिस, that creative tension between logic and intuition is very important thing to develop in life, to foster in life,
okay, and how significant it is for education system, okay, as well, to foster both intuition and logic in the kids who are studying in the education system, or also even parents have to understand this creative tension is how significant it is for their kids' future, and how education system and parents should focus on developing the right blend of intuition and logic, giving them right opportunities to develop this creative mind, creative and emotional mind, as well as logical, reasoned mind, and with which these kids tomorrow will be able to achieve a great discoveries. So इस तरह से you can conclude in a best way. So this is what we call, guys, perfect essay, and आप ऐसा essay लिखो, definitely will give you more than 70, 75, around 80 marks. Okay, every dimension we properly covered in proper flow. एक strong story से हमने intro किया, then we discussed सारे इंट्यूशन, लॉजिक, विजनरी डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन, हर एक का उससे रिलेशन हमने एस्टैब्लिश किया, दोनों का इंटरप्ले क्यों जरूरी है वो एस्टैब्लिश किया, या कैसे ग्रेट थिंग्स कैन अचीव वो लिखा, एंड देन हाउ टू डेवलप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने दिए लीजेंडरी इसको एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड देन वी ऑल्सो सजेस्टेड वेज टू डेवलप इंट्यूशन लॉजिक, एंड देन वी कंक्लूडेड एज अ समराइजेशन प्लस फ्यूचर गाइडलाइन फॉर एजुकेशन सिस्टम एंड parents why this blend of intuition and logic is necessary and they should develop in the next generation. Okay, so that's all for now. I already uploaded 2 more essays, और भी 1-2-3 essays मैं upload करूँगा. So check out my YouTube channel and stay tuned where you will get this essay. And also previously I have uploaded many other lectures where I have given detailed structure of the essay topics. वो भी आप use करना, that will be of great help for you. So follow Darshanik IAS by Kadam sir. Stay tuned, subscribe, and like all those videos that you like. Do share with your friends and help me grow. And for the downloading PDF of this, you can use UPSC Ethics 4 channel, Telegram channel. There you can download this PDF. And also soon, guys, I am going to launch my essay and ethics comprehensive courses in Hindi, English, matlab English mix, but English will be the major base. Okay, and you can download my Darshanik IAS channel from Google Play App Store by December 23 or Jan 24. I will be launching these full courses. So thanks for listening, guys, and stay tuned for the next topic.